decided to join a radial and hopefully I go from Bombay to Hubli, 11 hours. On bike, sir. A very good morning to all of you. I am Yadvindu. My friend. We will talk about innovation. Innovation की बात करेंगे तो innovation में I will not be using any management jargon. रेलवे में हाथ से काम होता है और जो शब्द हैं जो MBA स्कूल से पढ़ाए जाते हैं उनसे बात करने में मजा नहीं आएगा. I think it will be better we talk about real time जो एक्चुअली हमारे वर्कशॉप में होता है, रेलवे में होता है, उसकी बात करेंगे. स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर के व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी. तो ऑल सेट आगे समझो भारतीय रेलवे में एग्जैक्टली क्या हो रहा है और कहां पर क्या संभावना है और क्या किया गया है उसकी हम बात करेंगे. राइट. So before we continue to speak, there is a small component I have brought. It is in my hand. आपको देता हूँ, आप उसको देखिए, फील करिए और पीछे भेज दीजिए और लास्ट में जब हो जाएगा तो उसे मुझे और थोड़ा, ठीक है. ज़्यादा मत देखिए सर, जाने दीजिए. थोड़ा थ्योरी दे देता हूँ. थ्योरी ये है कि इनोवेशन तभी होगा जब कोई परेशानी आएगी या प्यास होगी. खाने की ना, एक होगा प्यासा था, कौवा को इनोवेट बिकॉज प्यासा था. बिना प्यास के इनोवेशन नहीं होता. राइट. प्यास किसी भी चीज की हो सकती है. The first example, what is going in your hand, the new rolling stock which we have is the Vande Bharat, right? Many of you would have traveled in the train, many of you would have seen the trolley also. जिन्होंने नहीं देखा है, भारतीय रेलवे के आदमी हैं, कोई बुराई नहीं है, कुछ डिपो में जाकर के एक बार उसके दर्शन करें. मैं गया कोचिंग डिपो में. I not take the coaching depot. I normally wherever I go, I visit the workshops and the coaching depots. In the workshops, there is an item. There is an item called anti-roll bar. When the train is traveling, this section is rolling. This section is rolling. Now होती है this is pitching. तीनों मोशन होते हैं. रोल करना, नाव जाएगी पिच करेगी और ये यॉ. ठीक है. तो there is a device in the rolling stock which prevents the train from rolling. That component is called anti-roll bar. Irrespective of whether you are a doctor or commercial officer, जो अभी बात की जाएगी, it is not about that particular specific activity or the component. It is about the thought process. सोच की बात है. You may be belonging to any discipline, hardly matters. It is about a thought process which a common human being is supposed to have. तो पहले this is a part of that anti-roll bar. देखो निपल की कहानी भी खतरनाक है, बट आपको बताते हैं अब काम की चीज की जरूरत है. We'll talk about all these one by one. So this item you see, it's a rod, right? This is a rod. There are vertical dampers here which are connected. One part is connected to the movie frame. This is a housing. My coaching depot में गया, coaching depot. My primary job is to buy material. That's all. Full stop. माल होना चाहिए. But इसके beyond जब जाते हैं तो जो खरीदा गया है वो यूज हो रहा है कि नहीं. In one of the coaching depots, I went and I found there were drums of grease. एक ड्रम खुला हुआ था, आधा खुला हुआ था, and it was not being used. मैंने कहा क्या है, कहाँ यूज होता है? थोड़ा सा ये एंटी-रोल बार का ऐसे लगाते हैं. He said grease gun is there. मोटा-मोटा पिचकारी है, पिचकारी के आगे एक पाइप लगा हुआ है. Somebody is supposed to go in the pit. Pit की हमारी height and the condition we all know. And the position of the housing of the anti-roll bar is such that it is impossible to reach there. Normally coaching depots में केवल एक बंदा जाता है. Normally it happens to be a 50-year-old lady. Light नहीं है, height कम है. अब anti-roll bar का जो bearing है, जो housing है, उसको देखना है. उसके बाद उसकी जो bearing है, bearing जो housing के नीचे एक छोटा सा slot बनाया, उसमें ये component लगा हुआ है. And how does this component work? बड़ा सिंपल है. आपने देखा था. What exactly is the issue of Vande Bharat? And this is the anti-roll bar. ये मैं हाउसिंग की बात कर रहा था. ये देख पा रहे हैं, ये महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं. Can you see? It's there. Now you know what is the location? ठीक है. See there is a ball here. जब हम बचपन में
tin, ball tin. Yes. There was a cylinder, then there was a ball, right? There was very little clearance between the cylinder and the ball. And because of capillary action, when I was moving the ball, was moving come out, right? Here there is a ball here. The moment I take the ball down, there is a clearance and there is a spring below this. ये जो आपने देखा था इसके नीचे spring लगी हुई छोटी. The ball is supposed to be pressed. बड़ा मुश्किल है इतने लाइट में और रूम में देख पाना, right? Now we are in the pit line. There is a housing here, and this is downside. Now I have to go with a grease gun. Grease gun में प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी कि normally पिचकारी अगर मुझे चलानी है, there is a piston and there is a cylinder. I can hold the piston, I can hold the cylinder. How do I hold the flexible pipe which is going to attach to the grease nipple? So दो बंदे चाहिए, दो बंदे नहीं जाते. Same problem is there in LHG. 2011 में there were mass scale rejections of anti-roll bar of LHG. कभी मौका मिलेगा, अभी तो सबकी सर्विस है. Go and have a look at the anti-roll bar of LHG. Same problem is there in this. अब इसमें क्या है? If I have to take a pipe, put it here with my hand, there is no mechanism, no way I can use the piston. There is a lever type grease gun is also there, but the dia of the gun and the lever, the distance is so much that holding both and putting is difficult. So ultimately हो क्या रहा है? The bearing is not being greased. How do you know this? You go to a workshop, go to the anti-roll bar section. जब आप हाउसिंग को देखोगे तो उसमें जो है ग्रीस पत्थर बन जाता है. क्या बन जाता है? पत्थर बन जाता है. तो रेलवे के पास एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है. एक चिट्टी फरमान इशू हो गया कि पूरा एंटी रोल बार निकाल के SS2 में फेंक दो. क्या कर दो? पूरा एंटी रोल बार जो है, ये हाथी है, हाथी को निकाल करके फेंक दीजिए. Instead of going to the exact issue, the issue is very simple. What is the solution? I hope आप लोग मेरे साथ हैं. सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है. करना क्या है? ये हाउसिंग को थोड़ा सा फ्लैटन करना है. टैप ड्रिल लेकर के सर्टेन डाया का टैप मारना है. टैप मार के यू टेक अ नट एंड अ ओरिंग एंड फिक्स इट. बंदा एक स्पैनर लेके जाएगा, खोलेगा. दिस इज वेरी सिंपल सॉल्यूशन. इसकी जो हाउसिंग है ये दिस LHG. सो वेरी सिंपल सॉल्यूशन इज देयर फॉर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, बट वी आर वेरी गुड इन saying आगे देखते. What I am trying to tell you is, you don't need mathematics and physics and all those things to innovate. We only need observation. एक thirst होना चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए. Once we have that, innovation automatically comes. सर बोल रहे थे SSC बन जाएंगे हम. जिस आदमी ने रेलवे में हथौड़ा नहीं चलाया अपने हाथ से, the person in railways who doesn't know what is the dive of the handle, what is the profile of the handle, what is the weight, when I lift it, how high I lift it, and when I bang it, what should be the velocity, what should be the force. He is not a true railwayman. जिस आदमी ने कभी एंगल ग्राइंडर नहीं चलाया है, आप अपने SSC को, JEE को, वर्कर को कब समझा पाएंगे? When you know what are the types of grids which are available, what are the types of grinding discs. 22,000 RPM में चलाऊं, 40,000 पे चलाऊं, 12,000 पे चलाऊं, राइट? कार्बोरेंडम का है, एल्यूमिनियम कार्बाइड का है. Unless we have hands-on knowledge. रेलवे में सबसे बड़ी बीमारी मेरे हिसाब से क्या है? We are not going to the field. We don't understand this. We stay in our room, and then there is a problem. We are not able to get to the right solution. Simple solutions are there for very complicated things. There is a common reference, मैं बात लोग की बात होती है. ये मजा नहीं आ रहा है. सबसे बड़ी बीमारी रेलवे में जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है. मजा क्यों नहीं आ रहा है? The world is waiting for you to go and explore. अपनी आंखों से, अपने हाथों से फील करिए, and then the world becomes a beautiful place. Let's go to the second one. You all have seen an ICF trolley. और ICF trolley को ध्यान से देखना है. मैं इसको एक मोटा दिखा देता हूँ कि किस चीज की बात कर रहे हैं. This is primary suspension. Okay. We are talking about this particular component. इसकी बात करेंगे, ठीक है? These models are available, just like John Hart models. Hundreds of models of all types are available. तो हम अभी इसकी बात करेंगे. तो चलिए इसमें चलते हैं.
सर ये कहाँ पर यूज होता है ये भी थोड़ा सा बता दें। प्राइमरी सस्पेंशन देख लीजिए पहले जरा इसको सर ये सब देखो अवेलेबल है इसे स्क्रीन शॉट में ये अवेलेबल है मुझे राइट माय नेम जॉन गॉड ये है दिस ओनली ईपीआरएसएन ये ओल्ड बहुत पुराना है एवरी कंपोनेंट यू कैन सी। हम इस पोर्शन की बात करने वाले हैं अब इसकी डिटेल में जाते हैं लेट्स गो इन डिटेल इसमें जाते हैं इसमें क्या इनोवेटिव या जो किया गया है और क्या संभावना है इसकी बात। अब इसके अंदर क्या चीज थी वो मैंने पूरा एक्सप्लोर कर दिया है ताकि आप लोग नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले देयर इज अ बोगी फ्रेम पे मैंने एक्सेल गाइड को भेज दिया। एक्सेल गाइड के अंदर मैंने क्या किया ये बुश को उठाया बुश को उठा करके क्या डाल दिया चढ़ गया। उसके बाद में मैंने नीचे सर्कुलर मार दिया। इसके अंदर देयर आर 9 होल्स ऑफ 5 mm डायमीटर दिखा दें। नॉट मेनी पीपल आर अवेयर बट एक एक करके चलेंगे तो क्लैरिटी आती जाएगी। कुछ देख पा रहे हैं सर देयर आर 9 होल्स ऑफ 5 mm डायमीटर देयर इज अ पर्पस फॉर दिस होल but how railwaymen have made it ineffective and thereby causing lot of issues इस पर मैं तो ये मोटा मोटा एक्सेल गाइड हो गया। इस पर मैंने एक्सेल गाइड चला दिया। इधर मैंने ये मेरा हाइड्रोल वॉशर ऊपर चला गया ये हमने सर्किट मार दिया ताकि ये बुश नीचे नहीं निकलेगा। ठीक है अब इसको समझना है तो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है पिचकारी। पिचकारी में क्या होता है देयर इज अ सिलेंडर एंड देयर इज अ पिस्टन सो द एक्सेल गाइड इज अ पिस्टन। ये जो नीचे महाराज है ये वाले लोअर स्प्रिंग सीट बोलते हैं इसको। ये है बॉडी सिलेंडर की बॉडी। इसमें भरते हैं तेल। क्या भरते हैं तेल डैशबोर्ड ऑयल बोलते हैं। गाड़ी जब चलती है तो दी ऑयल एवरी लिक्विड हैज अ डैम्पिंग प्रॉपर्टी। जब गाड़ी चलती है तो ये जो पिस्टन है दिस पिस्टन इज सपोज्ड टू गो इन दी लोअर स्प्रिंग सीट एंड इट इज एन एंड देयर एंड when it is going down the oil in this is supposed to get back here. Oil is supposed to go back in this hole. That is why the holes are there. Otherwise भाई लोग उसको सीधा वेल्ड मार देते। ये होल में आने के बाद क्या हो this Excel guide has 2 holes here. एक यहाँ पर होल होता है यहाँ पर होल। This Excel guide has 2 holes. 99% of the railwaymen are not aware. I have been to at least 25 coaching depots and n number of workshops. 8 रेलवे में नौकरी किया है फ्रॉम वास्को टू दिस हुबली बेंगलोर बम्बई के सारे ईस्टर्न रेलवे के एमजेपी एंड ऑल दैट एडब्ल्यूआर पीपल आर नॉट देयर। क्या है यहाँ पर 2 छेद है ये जो तेल अंदर घुसा दिस तेल इज सपोज्ड टू कम आउट हियर बट दिस तेल विल कम आउट व्हेन इसके ऊपर तो ये एक्सेल गाइड चढ़ा है। इस एक्सेल गाइड में भी यहाँ पर 2 होल है। दिस एक्सेल गाइड आल्सो हैज 2 होल्स हियर सो द ऑयल इज सपोज्ड टू गो इनसाइड come out of this and come back here. But what is the issue? डैशबोर्ड में प्रॉब्लम क्या है? डैशबोर्ड में प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है। ये मेरा फ्रेम है ये मेरा गाइड आ गया ये मेरे होल है। अब क्या है इसका अगर मैं ये बनाऊंगा ये बन जाए। ठीक है ये जो इसके नीचे मेरा जो ये बुश है ये बुश में भी यहाँ पर छेद है। जब मैं गाइड के ऊपर बुश चढ़ा रहा हूँ इसका होल अलाइन होना चाहिए। अगर 1 डिग्री इधर हो गया तो क्या होगा? अगर आधा डिग्री भी ये बुश इधर हो गया तो छेद बंद हो जाएगा। दोनों छेद बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? तेल महाराज जी गए अंदर रुक गए। डैशबोर्ड नाउ बिकम सॉलिड इट कम्स आउट और बैलेंस डैशबोर्ड ऑयल को रेल में गिराएगा। इसीलिए 50 किलोमीटर के बाद में डैशबोर्ड पूरा खाली हो जाएगा और हमारा ट्रैक गंदा। सॉल्यूशन क्या है? बड़ा सिंपल भैया एक बार जो चढ़ा रहा है तुम्हारे पास ये जो CO2 वेल्डिंग करते हैं उसका तार पड़ा रहता है उसको डाल के देख ले एक बार। तो मैंने इसको चढ़ाया है एक बार if it is the wire is going the holes are open then this problem will not be there. Very simple solution for a complicated problem. Why? क्योंकि मैं अपने कमरे में बैठा रहता हूँ। I don't want to be a hands-on man. The moment you go and feel and see the solutions are all waiting. Innovation is all waiting for you to implement. आप बता पाएंगे जब आप जानते हैं, आप जानेंगे जब आप फिजिकली वहां पर जाकर के बात करेंगे। ये हो गया दूसरा दैट ग्रुप अनदर तो हमने इसकी बात कर ली है। ये दिस इज हाउ जिन्होंने नहीं देखा देखिए
इसकी गाड़ी इसकी बात करते हैं, लग रहा है दिस इज लॉन्ग टाइम बैक there's a meeting, there's a workshop, there's a meeting every morning. मेरा काम है बाल जुगाड़ करना. There is an item called rear cover. दिखा देता हूँ क्या होता है rear cover होता है. I'll show you what is the rear cover. That item was not available. My CWM said कि I said I will not buy. पागल हो गया. How can you tell the CWM? I asked CWM खराब हो रहा है. Why the ID is increasing? Why the ID is increasing? What is it made of? It is made of aluminum. What is the PHN? Internal hard disk क्या होती है aluminum की? 15. Right? So basically there is an interaction of aluminum, wool, यानी keratin बाल, and लोहा, which is 140 PHN. So there is an interaction happening. If we understand, I said कि सर ये 10 रुपए का आइटम जो है ये 5000 रुपए का आइटम को खराब कर रहा है, 10 रुपए का आइटम को चेंज कर देते हैं. If we change the property of the felt ring, which at the time I used to buy for 12 rupees, I said let us buy a bloody felt ring for 100 rupees. 100 रुपए की felt ring खरीदेंगे, 10 गुना रेट पे खरीदेंगे. But it will prevent the damage to the rear cover and the collar. Now what is the implication of buying a 10 rupee item for 100 rupees? एक रेक में 20 कोच होते हैं, ठीक? एक कोच में 2 ट्रॉली होती है, हर एक्सेल पर 2, कितना हो गया? 4 दूनी 8 इंटू 20 160. 160 चाहिए मुझे इंटू 100 रुपया 16,000. पूरे रेट में जो कॉस्ट इन्वॉल्व है फॉर गेटिंग अ बेटर फिल्टरिंग इज 16,000. 20,000 रुपये. मैंने तो 10 गुना लगाया, हो सकता है टेंडर करेंगे तो 10 नहीं है. अगर मेरा 20,000 रुपया एक्स्ट्रा डालने से अगर मेरा रियर कवर और कॉलर बच जाता है, इट इज द वर्थ आइडिया. नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज एक्जेक्टली हैपनिंग. पहले दिखाता हूं फिर उसकी पीछे की थ्योरी की बात करेंगे. We go back to the primary suspension again. See, this is the rear cover, right? Rear cover, front cover का मतलब बेसिक समझ लीजिए. एक बक्सा जिसके अंदर एक्सेल जाएगा वो बन गया एक्सेल बॉक्स. एक बॉक्स जिसके अंदर एक्सेल जाएगा वो बन गया एक्सेल बॉक्स. दिस एक्सेल बॉक्स. एक्सेल बॉक्स के अंदर आएगी बियरिंग. बियरिंग में भरूंगा ग्रीस भर दिया. एक तरफ जो नॉन ट्रेन साइड है बाहर वाला, उसको तो मैंने एक डिब्बे से बंद कर दिया, ढक्कन से बंद कर दिया, वो बन गया फ्रंट कवर. पीछे वाला भाग जब गाड़ी चलेगी, चक्का घूमेगा, एक्सेल घूमेगा, तो ग्रीस बाहर यहां से बाहर नहीं आएगा फ्रंट कवर से. इट विल कम आउट फ्रॉम द रियर साइड. अब रियर साइड में प्रॉब्लम क्या है? रियर साइड में आप ढक्कन से बंद नहीं कर सकते. क्यों नहीं बंद कर सकते? एक्सेल. So you need a mechanism wherein back side में there is some clearance between the axle and the body which is covering it, right? So that is what is called the rear cover. Okay? अब ये जो rear cover है, इसके अंदर एक slot अगर आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक component होता है felt ring. ये घुसता है. इसके slot के अंदर ये felt ring घुसता है, right? What is felt ring? Felt ring is something which is made out of sheep's wool. What is wool? Wool is keratin, the protein. मैं जब स्वेटर खरीदता हूँ तो मुझे तो I tell I want merino. What is merino wool? Stylish wool. Now it is Australian. It's called Australian wool, right? Why? Environment is clean, no dirt, less smoke, quality is better, right? हमारे यहाँ जो जोधपुर का जो राजस्थान का जो फेल्ट आता है, वो एंड होल्ड दी फेल्ट. यू कैन सी देयर विल बी लॉट ऑफ लिंक एंड ऑल दैट. दी प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म. इफ होता क्या है, ये जो फिल्टरिंग है इसके अंदर लगा हुआ है, ये एक्सेल के ऊपर घूम रहा है. फिल्टरिंग अगर मेरा पैरिश करता है, इफ माय फिल्टरिंग पैरिशेस, ये एक्चुअली मैंने गलत बना दिया, इसमें
ये जो कॉलर है, कॉलर कम्स दिस साइड, ये जो कॉलर है, ये जो कॉलर है, ये जो कॉलर है, ये जो कॉलर है एक्चुअली दिस इट शुड कम ऑन दिस साइड ऑफ द एक्सल, ये इसको बंद कर दिया, यहाँ से बंद हो गया, फेल्टिंग ने उसको बंद कर दिया, अंदर आपका ग्रीस जब घूम रहा है, सॉलिड का लिक्विड हो गया, फिर भी बाहर नहीं निकलता है। हो क्या रहा है कि जो फिल्टरिंग है, फिल्टरिंग बारिश हो गई, ये कॉलर का जो ये वाला पार्ट है, जो इनर पार्ट है, ये इसके आईडी में घुस जाता है, उसको खा जाता है, कॉलर भी मर गया, रियल कवर भी मर गया। तो अल्टीमेटली हमने 10,000 रुपए का एक पर्टिकुलर एक्सेल में सत्यानाश कर दिया, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फिल्टरिंग वाज नॉट राइट। इसका लोअर परेल हम लोगों ने फिल्टरिंग का माय सिलेबस वाज नॉट रेडी, सो मोटो चेंज किया, सोर्स हैज नॉट लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड द गाइस रेडी टू टेक अ कॉल। खरीद करके विदाउट एनी नॉन स्टॉप डिमांड बना के दे दिया, केवल सीडब्ल्यू में बोला था गाड़ी जाएगी तो मुंबई इंदौर में लगा देना भाई, एक रेट में लगा देना, मुंबई अहमदाबाद में लगा देना, ताकि मॉनिटर हो सके। बट अनफॉर्चुनेटली जो कोचेस हैं दे डोंट कम आउट इन अ वर्कशॉप। We did monitor the rakes and we found that those coaches which were within our territory, the rear cover there was no damage. What I am trying to tell you is, अगर आप खुद फिजिकली खड़े होंगे, अपना पैंट थोड़ा सा काला करेंगे, फिट में जाएंगे, then you will know what is the issue, and you all will be able to find a solution. We are not here to design a spacecraft or missiles and all. छोटा डेल्टा x जीवन में डेल्टा x चेंज होगा, then the sense of satisfaction which you will get, it will be of a different level. I am repeating it. ये जो example दे रहा हूँ, it's not about any particular department. It is a thought process. You may be a doctor, you may be from any department. चीज को अलग तरीके से देखने के नजरिए की बात है। There is a way to see things in a different light. Now let's come to one more example. ये मैंने बनाया था, इसको मैं see, this is what we were talking about. This ये वाला जो ड्रॉ करेंगे हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला दिस पोर्शन, दिस इज द रियर कवर, दिस इज द रियर कवर, ओके, दिस इज द फ्रंट कवर, दिस वन इज द फ्रंट। जब इसको मैं रोटेट कर दूंगा तो ये पूरा गोल बन जाएगा। दिस इज द कॉलर। नाउ यू सी देयर इज एन इंटरेक्शन एट 3 लेवल्स। दिस आप समझ पा रहे हैं? द पर्पस ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू द 3D was it will be difficult to understand. ये थोड़ा सा मैंने लिखा मिला कि ये जो है ये आपका रियर कवर है, ठीक है, ये रियर कवर है, ये आपका फिल्टरिंग है, इसलिए मैंने लिखा था, थोड़ा समझ में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट वी हैव डायरेक्टली गॉन दिस इज ओवर, वी गो टू नेक्स्ट वन। दिस इज द एलएचबी होम, राइट। आईसीएफ में ब्रेक कैसे लगता है? चक्का है, ये टुटका है, ये इस पे चिपक जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। There is a brake head, there is a brake block, there is a brake shoe key. It is connected to a brake beam. The brake beam hangs on a brake beam hanger. The double type. तो तार लटके रहते हैं. That is the normal system. 3 brake. इसमें होता है disc brake. पहले समझ लेते हैं, फिर go to the इसके बात कर रहे हैं। तो ये LHB है, इसमें आप देखेंगे ये डिस्क लगा हुआ है, इसमें एक डिस्क है, ये एक्सेल के ऊपर यहाँ पर 2 डिस्क दिख रहे हैं, राइट। ये आपका ब्रेक बीम असेंबली है, ये आपका पूरा जो असेंबली है, दिस इज द ब्रेक कैलिपर, दिस इज द ब्रेक एक्चुएटर, और ये ब्रेक पैड है। एक बार दोबारा थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। तो अभी देख पा रहे हैं, इसको नीचे दिखा देते हैं। ब्रेक पैड पहले तरह ब्रेक पैड देखेंगे, ये दिस इज द ब्रेक पैड, राइट। ये ब्रेक पैड है, ये मेरा ब्रेक एक्चुएटर, इसको ब्रेक सिलेंडर नहीं कहते हैं, ब्रेक एक्चुएटर कहते हैं। इट्स
कनेक्टेड टू एक पाइप, ऐसे आएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या है? अब ये जो हमने देखा है इसको थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं। ये जो कंपोनेंट है ब्रेक कैलिपर और ब्रेक एक्चुएटर दोनों के फेवली एंड नॉस, राइट? फेवली और नॉस लिखा है और इसको देयर इज समथिंग कॉल्ड PAC, आपने नाम सुना होगा कि मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही बनाता हूँ और मैं ही दूंगा और मेरे मर्जी से दूंगा, दैट इज PAC। तो अब ये जो आइटम की हम जो बात कर रहे हैं इसका एक डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। ये एंड व्हाट इज द स्टोरी करेंट सर, Accessibility not given, though it is possible. चलिए ये ब्रेक कैलिपर मैंने अलग से निकाल दिया है, इसको देख लीजिए। तो उसके पास खड़े होकर भी देखेंगे तो उतना क्लैरिटी नहीं आएगा। रिकॉर्ड आ गया। The only difference between the Fevli and the knob is what is the difference? इसकी जो ये वाली पिन है जिस पर ये लेवर घूमता है, this is naked. In Fevli it is encased. It is that is the only difference. And this is failure to failure and number of failure knob तो थोड़ा कम है। अब कहानी क्या है? कहानी बड़ी सिंपल है कि I was in साउथ वेस्ट इंडिया और क्या है, तो एक मेरे पास मेरा नाम खरीदना है तो टेंडर हुआ था 15.5 करोड़ का था और PAC था फेवली। मेरे से पहले जो CMM थे वो ऑलरेडी इसको देख चुके थे और उसको बोला कि एंड ही कोटेड 15 करोड़, 15.5 था, उसने 15.5 कोट किया क्योंकि BOP पे लिया था, बजट कोट लिया था। तो उन्होंने कहा नेगोशिएट कर लेते हैं, उसने 1 रुपया कम नहीं किया। खुदा रास्ता अनफॉर्चुनेटली मेरा क्वेश्चन हो गया, मैं आगे सेट किया। मैंने देखा क्या है मेरे साथ पढ़ोगे कि जब तक आई प्लस आई अंडरस्टैंड द आइटम आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो आई आस्क्ड दैट चलो यार रेट कम करके 15.5 करोड़ का है। वो कहता सर इंडेंट में इतना ही है, PAC आइटम है, साल से आता है, थोड़ा निकालना है ना। आई टोल्ड हिम इफ यू डोंट रिड्यूस द रेट सारे डिस्चार्ज कर दूंगा। My PCB was not very agreeable, but I discharged the tender. I floated an advertised tender. Advertised tender में किसी ने खो दिया। Luckily this brake caliper was not required for maintenance. It was required for assembly at rotate. लगता है कि इवेंट बनाया बना हुआ है, तो आखिर बनाया हुआ है रेलवे में, उसमें लगाना था। And the workshop was not yet handed over. So I knew कि there is a breathing time. Retender में गाय रोटेटर रेट 14.5 करोड़, तो 1 रुपया नहीं कम कर रहा था नेगोशिएशन, उसने 3 करोड़ कम कर दिया। Then he said these are orders. I said no, this order will not go. This order will go at 10 crores 99 lakhs 99 11 करोड़ में जाएगा। कहता नहीं सर ये वो है बहुत। I kept a date for negotiation. जब वो आया, by the time some work had already been done. What was the work? I got the brake actuator from Madhura. Right? My room is like this big, it's like a workshop basically. So उसको पकड़ के पूरा खोल दिया। जैसे PAC आइटम पूरी असेंबली का ड्राइंग नहीं है, रेलवे के पास RTC के पास नहीं है। So what is the right way to do? क्या किया? पूरा एक्चुएटर चैम्बर में खोल दिया। खोल करके हर कंपोनेंट का these are the drawings created by my own hands. ठीक है, ड्राइंग बन गया। ड्राइंग बन के महाराज जी को उसके बाद 3D में कन्वर्ट किया। अब आई आस्क्ड दैट फेवली गाइस कि सर बताइए इसमें फ्रांस का क्या रहा है, इसमें साथ चांदी लगी है, किसमें सोना है, किसमें प्लैटिनम लगा है। He said sir meet me one day. Please extend the negotiation date to the next day, 16 hours. I am going to Bengal. He went to Bengal. Next day, 16, not euro पे negotiation with बोली. The rate was 10 crores 99 lakhs 99,000. 4.5 करोड़ एक आइटम में इसमें PAC देते हैं, and that it became the base rate for Indian Railways. Left and right for the workshop. What I am trying to tell you is, एक तो ये है कि मिनिमम की मेरा तो जीवन चल रहा है, ब्रेक कैलिपर ब्रेक
जीवन में मजा लेना है, मजा है ना, जीवन में मजा नहीं आ रहा, मजा इज वेटिंग एवरीवेयर फॉर everywhere you get involved, you own it up, उसको own करिए, own, the moment you own it, ये flower pot बिल्कुल करी बिल्कुल, वॉशरूम गंदा लगेगा तो आपको लगेगा नहीं साला यार साफ कर, लेफ्ट में कोई थूक मार दिया है तो आपको लगेगा नहीं यार मेरा है नहीं साला, मेरा बिजली चल जाता है, आप गीला कपड़ा लेके खुद ही उसको सारे साफ कर लो, बात तो मेरी, it is all about involvement, the moment we get involved, magic starts happening and we have to see the next one. We go to another right. See, this is the secondary suspension of the ICF coach, right? ये secondary suspension है ICF coach का. ये इसको हम 3D में भी चले जाएंगे, पहले मोटा मोटा देख लेते हैं. नोट इस पर आया था, दिस इज द बॉडी bolster, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कोच, दिस इज द बॉडी bolster, इट्स अ पार्ट ऑफ द कोच. बोल ही देता हूँ मैं. दिस इज, ये जो अभी हमने आपको दिखाया था ये ऊपर वाला था, इट वाज पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज पार्ट ऑफ द बोगी. This is the bogie bolster, right? लोड आया, वहां पर ऊपर जो the load comes on this, ये जो गोल ढक्कन दिख रहे हैं यहाँ पे, it is made up of bronze, इसके अंदर तेल रहता है ताकि इधर उधर होता रहे, ठीक है? इसके नीचे पीस आता है, बेयरिंग पीस, 11 से 14% मैग्नीज रहता है, हार्ड रहता है. लोड इस पे आ गया, इस पर लोड आ गया, अब ठीक है. बोगी बोल्स्टर से लोड कहाँ जा रहा है? इसमें डोंट गो बाय दी स्टोरी. रामायण में राम क्या किया, कौन क्या किया, डोंट गो बाय दी स्टोरी, द कैरेक्टर, सी द मैसेज, सी द कॉन्टेक्स्ट. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से. यू डोंट गो बाय दी स्टोरी, इट्स द मैसेज. आप समझ रहे हैं? ये मैं आपको मैकेनिकल नहीं पढ़ा रहा, एक दृष्टिकोण दे रहा हूँ. I am giving you a thought process. Suppose I make you a DRM in one division and there is corona. You are a DRM of a division and there is corona. Okay. Now your mandate is कि 55 से 60 साल के जो employees हैं, let's say you are posted in NFA and अलीपुरद्वार के इस सेक्शन में मुझे सेकेंड वैक्सीनेशन कराना है कोरोना का. I am giving you a scenario. Okay, you are a DRM in Alipurduar and in one particular section, for operating guys based at particular station, you want to give a second dose. How do you do it? Tell me. Simple. कुछ नहीं. इसके लिए you have to be innovative. I was DRM in 2 places. 2 साल मैं कटिहार में रहा था और 2 साल मैं यहाँ पे कुली में रहा. It's not about whether I'm COM or CTE. It is about the thought. Life gives you challenges. The challenges do not come in a defined mechanical, electrical. No. आपकी सोच, आपका thought process. I'm here to give you an idea, a way of thinking. It's not about the hardness, mineral hardness and all that. So sorry. तो समझने की कोशिश करिए. I can talk about doctors are there. I can talk about kidney. I can talk about ECG. Okay. I can talk about MRI. Any subject I can talk about metallurgy. But I'm here not to talk about specifics. This is a thought process. सोच, idea उसके लिए है. तो वही तक हम लोग सीख रहे हैं. तो ये मैं इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि सर डायरेक्टली कंप्यूटर पर चलते हैं. मैं ये कहना चाह रहा था कि व्हाट इज द इनोवेटिव प्रैक्टिस. उसी पर कहो. अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि ये जो है दिस इज यू डोंट नो व्हाट इज अ हैंगर ब्लॉक. इफ आई टेल यू देयर इज केस कार्बोनाइजेशन, केस नाइट्रेटिंग, इसमें 1.5 mm तक केस नाइट्रेटिंग होती है. आपको नहीं समझ में आएगा क्या बात है.
पहले देख लो हैंगर ब्लॉक क्या होता है। जैसे IS 1875 RDSO का STRC के 202, मैं बात तुमको नहीं समझ में आएगा। यू फर्स्ट नो आइटम क्या है, ठीक है। तो एनीवे सर आए आप लोगों का और सर का वो ये जो आइटम है ना, सी देयर इज एन इंटरेक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट विद दिस, राइट। दिस इज हैंगर एंड दिस इज हैंगर ब्लॉक, राइट। दोनों जब इंटरेक्ट करेंगे क्या होगा, घिसेगा, घिसेगा। अगर घिसेगा तो क्या तरीका है, दो तरीके हैं, या तो एक मिक्स कराएंगे डाल दिया जाए, दूसरा उसकी हार्डनेस बढ़ा दिया जाए। हार्डनेस कैसे बढ़ाते हैं, कार्बन इम्प्रेगनेशन करके, है ना। अब एग्जैक्टली मुद्दा क्या था, सेंट्रल रेलवे में हैंगर ब्लॉक नहीं आ रहा था, मेरा काम है माल जुगाड़ना है। शेड्यूल में बोलता है माल चाहिए, माल चाहिए। मोटर कोच में हैंगर है 750 ग्राम का होता है, जो माल आ रहा था साला रिजेक्ट हो रहा था, जो माल आता था रिजेक्ट हो रहा था। क्यों रिजेक्ट हो जाता था, बड़ा सिंपल था। देयर आर टू स्टील्स ब्रॉडली फॉर द one is IS 1875 and one is IS 202 ब्रॉडली। फोर्जिंग वाला जो होता है, जो फोर्जिंग स्टील है, जो फोर्ज स्टील है, वो नॉर्मली 1875 रहता है और उसमें क्लासेस रहते हैं 1 2 3 4, क्लास 1 2 3 4। क्लास 1 इज ब्रॉडली 0.1% कार्बन, क्लास 4 स्टील 1875 इज 0.4% कार्बन। ये जो है इट इज सपोज टू बी टफ बट हार्ड। टफ बट हार्ड का एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। माने बीबी ने आटा गूंथ दिया, वैसे आज की बीबी आप आटा गूंथता नहीं है, आपने आटा गूंथ दिया, वो उसको मारता है तो छोड़ देता है धीरे धीरे। आटा इज टफ नाउ, इट कैन टेक लोड, हटता नहीं है, बट आधे घंटे में क्या होता है, उसको एक लेयर आता है। दिस इज केस हार्डनिंग, दिस इज केस हार्डनिंग। द आटा डफ इज टफ, इट्स टफ, इट विल नॉट ब्रेक, अगर थोड़ा मारूंगा तो हटता नहीं है, राइट। But at the same time, there is a layer. This is exactly what is required here. It will take lot of bonding loads, but it will take all load because के अंदर जो कार्बन परसेंटेज है 0.1% है, लेकिन इसके जो बाहर मुझे 0.3% कार्बन चाहिए। So I need to do case carbonizing. Case carbonizing कैसे करते हैं? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये जो है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू करो। Why is difficult to करो? इसको मैं जरा दिखा देता हूँ। It's a very strange geometry. इसकी geometry बड़ी interesting है। इसकी जो geometry देख रहे हैं, I need to do case carbonizing only here and only here. अगर मुझे केवल यहाँ पर कार्बन घुसना नहीं चाहिए, कार्बन केवल यहाँ घुसना चाहिए, तो I need to mask it, right? अल्टीमेटली हो क्या रहा था, कोई केस कार्बोनाइजिंग करा नहीं रहा था, ऐसे ही भेज देता था, बाल आता था, भेज देता था। एंड सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे की नो अंडर फेस दे देता था, मतलब प्रूफ भी जाएगा। आई टोल्ड माय चिल्ड्रन सर क्या करते हैं, लेट्स बाय IS 1875 क्लास 3 टफ लाइन, इट विल बी टफ एंड इट विल बी हार्डन आल्सो, बट ही वाज नॉट वेरी कॉम्पिटेंट, मतलब ही वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। ही बोला CFD से बात करें, then CFD did not take a call, PCM से बात करो। what I did was I just purchased. I purchased hanger block for motor coach used on Central Railway, IS 1875 class 3, which was tough and which was case hardened. It was used, there were no issues. Later on, a new train was started, this was 2013. Same RDSO has adopted exactly the same system. But the new train which was there, the hanger block, had IS 1875 class 3. Anyway, innovation is there. What is your level of confidence? What is your level of understanding? आप कितने confident हैं? That will decide this. एक और क्या जाता है? पर एक बड़ा मिल रहा है, ये चक्कर का इलेक्ट्रिक एंड ICFD के छोटे सा कागज बनाता हूँ। ICFD नहीं था अभी आजकल LHD में मतलब ये आपके साथ इनोवेशन जैसे जो एफिशिएंसी या कॉस्ट कटिंग जो हुई है वो सब मेरी बाद में
ओवरऑल इन द रेलवे में देखो ये रेलवे इज डायनासोर when the tail is dead and the head does not grow. We all know कि मुझे 90 और 90s almost 73 years हो गए हैं. What रेलवे में हो न हो, जीवन में हो न हो, एक विचार. What is the possibility? If there are people who are ready, like the hanger block, I said this specification got me, and I am telling you, if I am in the railways, I will get the specification of this anti-roll bar for Vande Bharat change. Reason करेगा सारा. Today I am going to make the recorrect and with the DG also. They have to do it. There is no choice. सर इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो इनिशियल डिजाइन डिफेक्ट हाँ मैं इस पे आऊँगा very good question. Very good question. Very good question. I'll give you an example. जो वाइस डेवलप हो रहा था, वर्कशॉप में इसका टीम आया, कुछ हुआ है, शेड्यूल के पास शेड्यूल के पास because they wanted to know what is the requirement, right? Schedule obviously doesn't have. He sent it to the DTCM. DTCM production and they are all busy. जब चीज बन रही है, जब उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है, उस समय लिंक की DTCM को लाया जा रहा है उसके पास, वो गेम शॉट करता है, वो इधर क्या होता है अल्टीमेटली इट्स सो हैपेंड कि सब घूम-घाम करके मेरे पास आ जाते हैं, भाई ये आपके पास है. What I am trying to tell you, what is my requirement when the third guy is going to make it? I don't want to be involved. मुझे कोई लेना देना नहीं. जब वो डिजाइन जब बन रहा है, जब बच्चा पैदा हो रहा है, उसको क्या न्यूट्रिएंट चाहिए, वो सब मुझे कोई मतलब नहीं है. बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद मैं चाहता हूँ उसका काम टेढ़ा है, उसका पुराना है, उसका हीमोग्लोबिन कम है. तो दिस इज सर वेरी बेसिक थिंग. When development is happening, I am not bothered. मेरा काम नहीं है. तो सारा सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो गया, तेरा ऐसे नहीं, इसको ये नहीं है. अरे भाई जब तुम्हारे पास बंदा उसमें आया था, आपकी यूजर रिक्वायरमेंट पूछ रहा था, उस समय यू आर नॉट बिजी इन द नॉर्मल. दैट इज द इशू. हर जगह यही प्रॉब्लम है. अल्टीमेटली बन करके आ गया, आने के बाद परेशानी हो रही है. तो सिंपल तरीका है, क्या है एंटी रोल बार. इट्स नॉट ओनली एंटी रोल बार. आई गिव यू एन एग्जांपल. I start with ICA, then I go to LHB, then Vande Bharat. The normal life of ICA wheel is how much? 7.5. Same time था जब 12 महीने, when I was comparatively younger. नहीं DSP से नहीं आ रहा है, उस समय दो ही थे. वंदे भारत का वॉल्यूम 95% वीजा कमिंग फ्रॉम चाइना. ICA wheel की बात कर रहा हूँ, वंदे भारत both the wheels. अब क्या था कि यार चक्का है नहीं तो क्या करेगा? अब तो दो भाई बनाएगा, तो डॉक्टर बनाएगा यार रेलवे में. व्हाट यू कैन डू? I don't feel good saying I but still fact है कि मैं व्हील शॉप में गया. व्हील शॉप में गया तो ये जो टायर कटिंग करता है, पहला कट कितने एमएम का होगा? सिंपल. वो क्या करता है, पहला कट सीधा 2 एमएम का लगाता है. क्यों? सिंपल है. अगर मेरे पास ये मेरा चक्का है, इसका टीट खराब हो गया, अगर मैंने 2 एमएम का मार दिया तो एक बारी में पूरा टर्न हो जाएगा, तो मुझे दोबारा टर्निंग नहीं करनी. राइट? बात सही. अगर मैं 1 एमएम का मारता हूँ तो 80% व्हील्स निकल जाएंगे, अच्छे लेकिन 20% व्हील्स को मुझे दोबारा टायर टर्न करना पड़ेगा. अब ये क्या नया वाला जो व्हील उसका साइज क्या है? 838 दो साइज है ना, नया कंडम नहीं बना है. अगर मैं सीधा 5 एमएम का मार दूं तो लफड़ा नहीं है. बट जैसे ही मैं 2 एमएम का कट मारता हूं, मैंने व्हील की लाइफ को कम कर दिया. आई टोल्ड द सीडब्ल्यू सर, लेट्स डू अ लेसर कट. द लाइफ विल इंक्रीज एंड यू विल नॉट बिलीव इट. दिस वाज इंप्लीमेंटेड इन लोअर परेल. मैं गलती से पटना में चला गया, सर्कुलर में वी इंप्लीमेंटेड द सेम थिंग देयर. देयर आर 2 ways. दिस इज इनोवेटिव. यू 80,000 का चक्का आता है, आपने एक बारी में जस्ट बाय रिड्यूसिंग आपको, लेकिन ये है कि जो वर्कर है, पहले वाली में अगर मैं 5 एमएम का मार रहा हूं तो 100% मेरा एक बार टायर कटिंग हो गया, निकल गया, बट एट द सेम टाइम लाइफ तो कम खा गया ना लाइफ. अगर मैंने कम कट मारा तो 80% चक्के तो ठीक हो जाएंगे, 20% चक्कों को दोबारा काम करना पड़ेगा. दिस इज सो यू कैन प्रोड्यूस व्हील, यू कैन एक्सटेंड द लाइफ. Same with rails also. Same technical concept.
LHB I don't know how many of you are aware. LHB में the average cut 3 बार टर्निंग करना पड़ता है, 3 बार टर्निंग करना पड़ता है 15 से 18 mm. Can you imagine what is the life of LHB? है? What? 3.5 years. सर 1.5 साल से ज्यादा भारतीय रेलवे में हो ना, बता दीजिए 1.5 साल 2 years है मतलब your airbag section is looking very good. सर 15 मिनट में काम करना शेलिंग अरे गड्ढा गोबर निकलता है इसमें से. शेलिंग करके अरे वो वाला जो थर्मल पैक हो रहे थे उसमें अरे नहीं सर, I was traveling in I this coaching depot जयपुर. कहीं गाड़ी का मैं खड़ा हुआ प्लेटफॉर्म पर, मैं चक्की को देखा, फर्स्ट एसी था. बिल्कुल I didn't want to seriously do and this. He was detached. There is a massive problem in the WSP. There is a massive problem in WSP. सारे मतलब टेक्निकल फॉल्ट एक अलग चीज है सर. ये तो जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें जो डेप्थ है ना, एक्चुअली क्या है, अब जैसे मेरा ये है, अब मेरा इतना ज्यादा डेप्थ है. अगर मेरा इतना डेप्थ है, मेरा प्रॉब्लम है, तो मैं पहले टाइम में मैं देयर इज अ सर्टेन लिमिट. फर्स्ट टर्न काटूंगा जब तक यहाँ तक नहीं आऊंगा, सेकंड टर्निंग, थर्ड टर्निंग, 3 बार टर्न करना होता है. तो डिपेंड करता है वो प्रोफाइल पे डिपेंड करता है. सर प्रोफाइल आने पे डिपेंड वही कह रहे हैं कि कितना गहरा गड्ढा है. सारे मील में ऐसा नहीं हो सकता सर. ऐसा रहता है कि आपके पास अगर व्हील का ये डिफेक्ट यानी चेक करने का एक तरीका रहता है जिसको टायर डिफेक्ट बोलते हैं. तो जिसमें यानी एक रहता है हॉलो टायर जिसमें 3-4 mm का यानी अपना गो नो गो गेज रहता है. अगर उससे ज्यादा अगर होता है तो मतलब इन्हें आपको टायर चेक करना पड़ता है. सर सिंपल चीज है सर, ये देखिए मतलब 3-7 का टायर यूज होता है. सर देखिए ये जो है, अगर मेरा चक्का इस तरह से, ये अगर मेरा चक्का इस तरह से है तो पहले चक्के में इतना करूंगा, सेकंड में इतना करूंगा. इट हैज टू बी लाइक दिस. फाइनल प्रोडक्ट है तो वो तो रेयर व्हील्स है सर. सारे वो तो रेयर व्हील्स है जिसमें पिकिंग आ गया या फिर उसमें फिटिंग 1 mm का अलाउड है ओनली. हाँ वो भी लिमिटेड है. राइट. चलो ठीक है, दैट्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन. आई कैन शेयर यू एक्सेल शीट आई एम हैविंग इट. नॉट वन एंड नंबर ऑफ व्हील्स. आई लेट अस अंडरस्टैंड आपकी जो बात है 2000 मैं मतलब 23 में आया था, 2023 में आया मैं सर्टिफिकेट में. और रिक्वायरमेंट वाज 2500. सर बड़ा मजेदार है. अक्टूबर 2023 में मैं साउथ वेस्टर्न से आया तो LHB की व्हील की रिक्वायरमेंट भी सही जा रहा है पूरे सर्टिफिकेट. ठीक है, then it became 4000. This is 2025, 23 और 25 की बात कर रहा हूँ. How bad is this? Then it became 4000, and it became 7500. Today the requirement of wheel on Central Railway is 9000 wheels. जो 2023 में कितनी थी? 25. Now tell me, what is happening? इसका I am just trying to tell you, sir. आपने statistics वो सर रीजन दूसरा है सर उसका. यानी जो व्हील का रिक्वायरमेंट इसलिए आया कि You tell me about the web. बोलिए क्या होता है? व्हील का रिक्वायरमेंट है यानी जो ये एस्केलेट हुआ है उसका रीजन ये दूसरा Population? नहीं सर. ये जो व्हील बेस कपल मंगा रहे हैं उसका क्यों रिक्वायरमेंट ज्यादा है. उसका रीजन ये है कि यानी टेक्नोलॉजिकल जो चेंज किए हैं कि ICF से LHB में हम लोग पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिए. अभी ICF में कोई बनता ही नहीं है. अभी दूसरे जो है कि यानी मास स्केल में प्रोडक्शन यानी इंक्रीज हो गया सभी तरह यानी दिन MCF RCF और Let's talk about zonal railway यार. सभी जोनल रेलवे. मैं वर्कशॉप में सर हमारा भी व्हील का सर मेरी रिक्वायरमेंट एक चीज बात सुनिए. 2023 और 2025, 2023 2025 में 9000 डिवाइडेड बाय 2500, क्या 4 गुना LHB कुछ बढ़ गया? नहीं बढ़े. बात कर रहा हूँ. नहीं आप समझ नहीं. मतलब मैंने जो कहना चाह रहा हूँ अगर आपने IR की रिक्वायरमेंट आई कैन अंडरस्टैंड. IR की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, आई कैन अंडरस्टैंड. अब पर्टिकुलर जोनल रेलवे में नंबर ऑफ LHB को सभी रेलवे में बढ़ी सर. उसका रीजन है कि एक जो व्हील का आपने लाइफ को ले वो 2 साल अप्रोक्सीमेट 4 साल आता है क्योंकि उसमें 1 mm का ईयर हर महीना होता है. चलो अभी फिलहाल व्हील को छोड़ देते हैं. बात ये है अगर कोई चीज नहीं चल रही है तो अगर मैं उसको समझ लूं और उसमें संभावना हो कि भैया ये करने से सिलाई बढ़ सकती है तो सर मेरे को समझ नहीं आ रहा. जब ICF का भी 4 इयर्स चल रहा था तो ये इसके
नहीं बड़ा सिंपल है सर, आपको बता दूं। अरे ये देखो ना, ये 915 है, ठीक है। एलएचबी में 854 है कंडम, तो आपको जो टोटल मिल रहा है दिस माइनस दिस विल मैटर। टू स्टार्ट विद द लाइफ दिस द कंडम, और ये जो आईसीएफ में अगर मैं लूंगा तो 915 है और ये 836। तो यहाँ पर ऑलरेडी लाइफ जनरल है। दूसरा इसमें ब्रेक लिस्ट है, ब्रेक लिस्ट की जो लेंथ है उसके बियॉन्ड ऑफ दैट लिस्ट। See the life here you can see the life 915 minus 804, 915 minus 804, ये ICM है, ये प्लस व्हील शेड्यूल। मैंने शुरू में बताया था ब्रेक डिस्क and then WSP. ICM doesn't have WSP. There are issues actually. RDSO में 25 चिट्ठियां लिखी हैं 2018 के बाद only on this particular hospital जो आप बात कर रहे हैं, but still there is no solution. क्यों हो रहा है इसको लिखे दीजिए RDSO all the for implementing certain things 2018 से 2023-24 में मल्टीपल चीजें हैं। People are trying their best, but somehow जो उसके इक्विवेलेंट तो लाइफ आएगी क्योंकि बिकॉज़ ऑफ दिस लॉजिक इट विल बी लेस, बट हाँ देयर इज अ स्कोप टू एडवांस। सर ये यार क्यों लगता है इतना एलएचबी में से? उसका बात एक उसमें सर वो तो अपना ज्ञान दे मैं केवल ये बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट द व्हील एट ऑल। जब प्यास कौवा प्यासा का जब प्यास है ना तो सॉल्यूशन आता है, तब इनोवेशन आता है। दिस इज व्हाट द बेसिक moral of the story. It's not about being, it's not about economics, it's not about being anti-Europa. It can be anywhere. Huh? It can be And it can be anywhere. When there is scarcity, when there is a book, yes, तब innovation होता है। और wheel में भी, and railways have done it. Railways have done it. मैं बिल्कुल रेलवे का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं not taking any example from this school, that school and all, so that we are able to understand. कोई भी बिजली का इंस्ट्रूमेंट है तो पास देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्लीव, उसको चलाते हैं। खासकर आपके जो मोटर्स बनती है, देखो मोटर्स आते हैं, देयर इज अ स्लीव इज देयर सो दैट उसमें एक सर्टेन रीडिंग होता है कि मतलब इसमें कौन सा सपोर्ट है। तो इनका क्लासिफिकेशन होता है EF H टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, राइट। बेसिकली जो जितना आगे वाला है उतना ज्यादा बेहतर है। आरडीएसओ ने क्या किया, एक आइटम था ये फाइबर ग्लास स्लीव, मैं उस समय का याद है इसलिए चुकी आया आपसे शेयर कर देता हूँ। इट्स अबाउट द थॉट प्रोसेस, नॉट अबाउट द स्लीव। ये आइटम था, ये 10 तरह की स्लीव थी, अलग अलग डायमीटर थी, 10 अलग अलग डायमीटर, करीब 8-10 स्लीव थे। और आरडीएसओ में 3 बंदे थे टनल में, उसी से एंटर किया एग्जैक्टली, मतलब दिया वाला रेट है और जा रहे थे, गलती से मेरा पोस्टिंग हो गया उस सेक्शन। I said कि what is this item? कहाँ लगता है? अच्छा ये MVMT में लगता है, MVSL में लगता है। लोगों में जो उनका मोटर which is there to run the blower for smoothing reactor, तो कमर्शियल लोगों में MVSL बोलते हैं। MVMT is the blower which will run the blower for the traction motor cooling। उनकी जो मोटर थी वो ओरिजिनली की उनकी जब रिपेयर का आता था तो उनको बोला गया ये वाला स्लीव लगाना है, ठीक है। अच्छा देन जब चेक किया जो ओरिजिनल मोटर्स थी, सीमेंस की थी, क्रॉम्पटन ग्रिप्स की थी, उनमें जो स्लीव था वो F क्लास स्लीव था। जब नया बन के आ रहा है क्रॉम्पटन का या सीमेंस का या जो बड़ी कंपनीज का, उसमें F क्लास स्लीव है, ओके। दैट मींस सीमेंस and Crompton and others, they don't believe कि H class sleeve is required, but RDSO said no, the rate of H class sleeve was 5 times F class sleeve। इसलिए बड़ी मतलब
ब्रेकअप करके काफी बड़ा। I ask this simple question कि when the original motor has F class V, by default H class V, when it go RD से all the three vendors were owned by one guy. All the vendors were owned by the same guy. कुछ किया, ultimately we took the approval of the PCW, नहीं दिया, हम F class V ही खरीदेंगे। The moment that डिसीजन वॉज टेकन कि एफ क्लास स्लीव ही खरीदा जाएगा क्योंकि ओईएम जो है वो एफ लगा रहा है, दो काम हुए। क्या हुए? एएसी होती है कुछ स्टोर्स में, एवरेज एवरेज बात है। द मोमेंट वी मेड द चेंज फ्रॉम एच टू एफ, द एसी रिड्यूस्ड बाय 1/5 एंड द रेट रिड्यूस्ड बाय 1/5। कैन यू इमेजिन? जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंपल क्वेश्चन, द रेट केम डाउन बाय 1/5 के रेट हो गए। और जो रिक्वायरमेंट जो हमारे भाई लोगों ने बढ़ा की हुई थी, 5 गुना की हुई थी, बिकॉज देयर वाज नो वेंडर हु विल कम इन दक्षिणा देंगे। सीधा एक 1/5 हो गया क्वांटिटी का और रेट का। सी एक तो ये कि भैया तेरे को नेट दिया, जरा काम है खरीदेगा, ठीक है, दैट इज योर प्राइमरी जॉब, दैट इज व्हाई यू आर सेलिंग। बट व्हेन यू स्टार्ट looking here and there and trying to question, ultimately something beautiful happens. Ultimately, because F का जो था, H का F हो गया, and the requirement came drastically down. तो कहने का मतलब ये है, it's not about the F class fee, it is about the thought process. Why? क्यों भैया क्यों चीज है? कहाँ लगाता है? चल मेरे साथ, दिखा मुझे कहाँ है, क्या है? इन चीजों को करने से जीवन में मुझे कहीं लगती नहीं, मजा नहीं आ रहा है, मजा ही मजा आएगा, हर चीज में मजा आएगा। The moment you are ready to get up from your seat, go to that place कि भाई क्या हो रहा है। I worked as PCSO in South Western Railway for 2 महीने। ठीक है, बड़ी क्लासिक चीज बताता हूँ। एक हफ्ते के बाद में सारा एक्सीडेंट हो गया। There was a station called Visakhapatnam। विशाखापट्टनम में एक डबल डेकर थी, वो आ रही थी, वो train derailed. It was a SAG level inquiry. I was the convener. CT था उसमें, CRSC freight was there, and was CT guy, CST something was there. Exactly क्या था? There was a derailment on TWS. इतने के लिए है क्या? आप anybody else? Only how many of you have seen a thick web switch? देखना पड़ा। आप कैसे? सर मैं सीसीएम हूँ जी जी उस टाइम पोस्टिंग वाले कंपनी में ऑपरेटिंग में थिक वेब स्विच इज वेरी ब्यूटीफुल। यार्ड में जो है ना आजकल 2 तरह के स्विचेस होते हैं, कभी जाके खड़े हो जाओ बस, हाँ मस्त चीज है एकदम मल्टी में। इसका जो तो है कन्वेयर का जो इनिशियली जो स्टार्ट होता है इतना थोड़ा होता है, दूसरा वाला एकदम पतला एकदम नाइफ के टाइप रहता है और थोड़ा सा नीचे है। What is the learning in that? Basically उसका समरी वो तो हमने बना के देख लिया, जो करना था हो गया। ये जो मैं कह रहा था ना, रूम से उठ के जा के देख लो। मुझे कुछ काम करना है, मैं कहता हूँ डिस्कनेक्शन दे दूंगा, है ना? कई बार बिना डिस्कनेक्शन के काम चलता है, लेफ्ट एंड राइट चलता है, चाहे सीआरबी की किसी करके चलता है, राइट में, ठीक है? वहाँ पर वो कुछ फ्लिपिंग हो रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, कभी रिवर्स आता था, तब इंडिकेशन ऑल दैट प्रॉब्लम। तो बंदे लगे हुए थे 5:30 बजे से शाम के 5:30 बजे से बंदे लगे हुए थे। डेवलपमेंट होता सुबह के 6:11 तो एडिक्वेट टाइम होती सेम पॉइंट वेयर पीपल वर वर्किंग, पूरी रात रुके, फिर सुबह 6 बजे उठ करके फिर धंधे पर लग गए, गाड़ियाँ कागज पे पास करते हुए, बट उसके बावजूद भी वहां में गाड़ी गिर रही। नाउ व्हाट इज द इशू? I called the AN for the inquiry and the AST also. He was, for a long time he was not aware. CSSC did not inform him. उसका जो ADST था, उसका ADST था। जब आप ब्लॉक लेते हो तो everybody is aware broadly. When you take a block broadly, everybody up the line is aware. Disconnection के केस में होता है
Is the CDDST aware or the CDD of the section aware that a discussion is taken for a particular point? अगर रहते सुबह देता है तो लिस्ट जैसे हमारे यार्ड में है तो पूरी लिस्ट वही आ जाती है 40 वर्ल्ड पे जगह पे डिस्कनेक्शन इतने टाइम के लिए तब वो रहता भी साइड पे हाँ एक बार मेरे का है तो पता रहता है कि यहाँ काम होने मेजर तो चीज करता है नहीं मिलते तो उस इंक्वायरी में both the area and the PDST I have that they feel ignorance कि मेरे सेक्शन में काम चल रहा है पता नहीं तो भैया कम से कम कुछ चाहे रूटीन काम बनाओ ब्रॉडली किया उठ के चले जा देख ले अर्जेंट चाहिए उसको देख ले तो ये कहने का मतलब मोटा मोटा रक्षण में ये है कि गेट आउट ऑफ योर रूल्स यू विल फील वेरी बैड कि बहुत ज़्यादा देख रहा बट ऐसा नहीं मेरा दिल से मानना है कि when we get out of our chair go to the field and physically stand 99.9% things get solved and we are able to give a better thought process because of our education to our next पे चलेगा अरे स्टार्ट की बात करने से वो तो चाय की हमारा एक सेशन है चाय का दूसरा सेशन अच्छा तो कितने मिनट और है 11 आधा घंटा I am not used to